continue. Good afternoon, everyone. My name is Archie Jain. Me, together with my colleague Abhishek Jain and Arastu Sharma, will be discussing on the topic Prevention of the Money Laundering Act. I would like to thank Bharat sir for guiding us through and with supporting us. So, good afternoon, all friends. To start with, money laundering. Every now and then we are hearing in news about ED. ED is searching. They are making arrest of some persons. They are confiscating different properties of some persons. So every now and then we are listening the name of and reading the name of enforcement directorate in the newspapers and latest news. So what is this ED and what is this prevention of money laundering act is, why it is why so hype is created about this. So in this act government has given very wide powers to the enforcement director. Enforcement director is a body which contains of different officer, different level of officers, right from the director to additional director, joint director, deputy director, etc., who have the powers to enter into any office, to get search of that office, to make arrest of persons who are indulged in the in this act of money laundering. So money and about money laundering is we are making the persons are making their money which they have earned from illicit activities which are prohibited by law, which are referred under the Prevention of Money Laundering Act to be the activities of crime. So if any money is earned out of those activities by indulging those activities, and the persons are projecting that money as a untended money, and they are getting that money into the system, it is this process is called money laundering. The our team will explain further on these topics. So the Archie, you can take up. हाँ, तो हमारा आज का टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का प्रिवेंशन सीखने से पहले हमें देखना पड़ेगा एक्चुअली में मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। सो मनी तो हम सबको पता है क्या होता है। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द वर्ड लॉन्ड्रिंग की लॉन्ड्रिंग कहाँ से आया। तो इन द अर्ली 1980s यूएस में क्या होता था, वो बहुत ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग होता था। बहुत ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग होता था। और जब यूएस गवर्नमेंट ने उन लोगों से पूछा कि आपका ये जो मनी आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, सो दे सेड ये हमारे लॉन्ड्री बिजनेस से आ रहा है। व्हेन लेटर ऑन डिस्कवर्ड दिस वाज टर्म्ड एज मनी लॉन्ड्रिंग। So in fact, this thing was started in 1950s. Early in 1950s, there was drug trafficking and all that in US, and these drug mafia, they used to uh, laundered their money, their illicit money, by way of different activity, by way of showing them as they are doing some legitimate business. Yeah. सो मनी लॉन्ड्रिंग की हम लीगल डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, whosoever डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, अटेम्प्ट कर रहा है, इंडल्ज कर रहा है, या तो नोइंगली असिस्ट कर रहा है, या नोइंगली पार्टी है, या फिर खुद ही वो पर्सन है जो एक्चुअली इन्वॉल्व है इन द एक्टिविटी कनेक्टेड विद प्रोसीजर ऑफ क्राइम। नाउ प्रोसीजर ऑफ क्राइम हियर इज एन इंपॉर्टेंट कीवर्ड। और वो दिखा रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, या तो कंसील कर रहे हैं, इज इन पोजेशन, एक्यूजेशन और प्रोजेक्टिंग दैट और क्लेमिंग दैट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। नाउ बहुत ज्यादा लीगल लैंग्वेज हो गई, मोस्ट ऑफ यू मस्ट नॉट हैव गॉट। सो इन सिंपलर टर्म्स, व्हेन वी गेट ब्लैक मनी और डर्टी मनी, या फिर हमारा कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी से हमारी कोई भी इनकम होती है, उसको हम ऐसे सोर्सेस के थ्रू कन्वर्ट करें कि वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाए, वो किसी ऑफेंस में कवर्ड हो, तो उसे हम मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन को और बेटर तरीके से समझने के लिए हमें 3 डेफिनेशंस और समझनी पड़ेगी। प्रोसीजर ऑफ क्राइम। प्रोसीजर ऑफ क्राइम क्या होता है। प्रोसीजर ऑफ क्राइम मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी जो हमने डिराइव की है या ऑब्टेन की है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी,
which is covered in schedule offense. Now here keyword is what? Schedule offense. अगर आपकी जो प्रॉपर्टी, अगर जो भी आपने क्रिमिनल एक्टिविटी करी है, but it's not covered in part A, B or C of the schedule offense, then it will not be treated in money laundering. कोई और एक्ट में गवर्न होगी, बट अगर शेड्यूल ए बी या सी में नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग में तो कवर्ड नहीं होगी, ठीक है। सो अब अगर हम इसका पार्ट बी देखें तो पार्ट बी शेड्यूल ऑफेंस के पार्ट बी में हमारी ये है कि लिमिट की 1 करोड़ रुपीज होनी चाहिए। मान लो आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करी है जिससे जो आपका मनी जो भी आपका वो था अर्निंग वो 50 लाख रुपीज तक है, एंड हियर द थ्रेशोल्ड इज 1 करोड़ रुपीज, then your property will not be covered. Then your property will not be covered in the money laundering act. Now coming to the property, what do you mean by property? In property means any property or asset, कोई भी description का हो, corporeal या incorporeal, movable या immovable, tangible या intangible, या फिर कोई टाइटल डीड भी हो of interest of such property, of involvement of such property will be property covered in the money laundering act. अब इसमें मैं एक बात समझाती हूँ, भले से वो प्रॉपर्टी आपकी मनी लॉन्ड्रिंग से ऑब्टेन नहीं हुई है, बट स्टिल इट्स यूज्ड इन द कमिटमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो वो भी विल बी द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हर्ष है, ठीक है, हर्ष ने किसी का किडनैप किया, है ना। हर्ष ने किसी का किडनैप किया, बट जो व्हीकल यूज की थी ना वो अरस्तु की थी। Arastu is although not a party of that money process, but vehicle इसकी यूज हुई थी, इसलिए उसकी जो vehicle है that will be property in the money laundering. Any questions regarding this? So let me add something. So the basic thing in money laundering, the basic concept is there must be proceed of crimes, and proceed of crime, any act which is to be treated as a part of money laundering act in this act, there must be a crime to that. Proceed of crime means the crime which is mentioned in the schedule 1 of the act. So any act which is defined under schedule 1 is to be treated as crime. Those are subject to be come under the scope of prevention of money laundering act. So there must be a crime first of all, then there should be some earning out of that crime. That earning will be called as proceeds of crime, and only when there is proceed of crime the this act will apply to that. कुछ एग्जाम्पल्स जो मनी लॉन्ड्रिंग या वॉशिंग ऑफ द प्रोसीड्स में यूज आते हैं, जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज इसमें बेसिकली क्या क्या होती है, एक्सटॉर्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज, गैम्बलिंग, ब्राइबरी एक्सेट्रा, ठीक है। पॉपुलर एक्टिविटीज जो होती है, फॉल्स एक्सपोर्ट, शोइंग लोन्स, क्रिएटिंग बोगस कंपनीज, हमने देखा है आजकल अपील पे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं बोगस कंपनीज के, या फिर प्रॉपर्टी मार्केट में जब हम प्रॉपर्टी किसी और अमाउंट पे खरीदते हैं और उसकी एचडीबी कुछ और होती है, ऐसे ट्रांजैक्शन। अब मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है उसका एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट का इंट्रोडक्शन का, तो इसके ऑब्जेक्टिव थे कि अपन प्रिवेंट और कंट्रोल करे मनी लॉन्ड्रिंग को, कॉन्फिस्केट या सीज करे जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, और जो भी कोई और इशू है उससे डील करे दैट रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया। नाउ मल्टीपल मेथड्स अगेन, कैश स्मगलिंग इज एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कैश ट्रांसफर करना थ्रू इलिसिट सोर्सेज या स्विस बैंक अकाउंट एक्सेट्रा। स्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, कैश ब्रोक कर देते हैं हम इतने सारे स्मॉल अमाउंट में दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, हाँ कि फॉर्मल सोर्स उसका पता करना डिफिकल्ट हो जाए। लॉन्ड्रिंग वेयर रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, स्कैम्स, हवाला, ड्रग ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा। Now, what is the history and need of PMLA Act? Now, history इसकी क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1980s में यूनाइटेड स्टेट्स में ग्लोबल ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से बेसिकली आया था। तो 1980s में क्या हुआ था, जब ग्लोबल ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होते थे जिससे टेररिज्म को प्रमोट करते थे उस मनी से। तो बहुत सारी कंट्रीज मिलके ये यूएसए कन्वेंशन थी, वियना कन्वेंशन, और इंडिया भी उसका एक पार्ट था, और बहुत सारी कंट्रीज ने
डिसाइड किया था टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग एंड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, हेल्प इन कॉन्फिस्केटिंग द पर्सन एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, सो बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने 2002 में पीएमएलए इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, जो प्रेसिडेंट ने 2003 पे साइन किया था। नाउ व्हाट आर द स्टेजेस इन मनी लॉन्ड्रिंग? हमारी मनी लॉन्ड्रिंग की कैसे प्रोसेस होती है? सबसे पहले होता है प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट में क्या होता है? प्लेसमेंट होते हैं इलीगल एसेट्स आर ब्रॉट टू इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, अब कैसे फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाता है? जो प्लेसमेंट होता है ना, वो हमारे मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप भी होता है। प्लेसमेंट में क्या होता है? जो भी आपको क्रिमिनल एक्टिविटीज से जो आपने फंड्स लिया है या फिर जो वो आप लीगल फाइनेंशियल सिस्टम में इंजेक्ट करते हो। नाउ द सेकंड स्टेप इज लेयरिंग। हम लेयरिंग में क्या करेंगे? जो ओरिजिन ऑफ द मनी है ना, उसको आपको ऑब्लिटरेट करना है, तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस के थ्रू कि उसका सोर्स पता लगाना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाए, वो लेयरिंग करता है। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल लेटर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेशन। जब हमारा मनी में इंटीग्रेशन हो जाता है, तो जो सोर्स ऑफ ब्लैक मनी होता है या जो सोर्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग होता है, वो पता लगाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। और ये द ब्लैक मनी और द प्रोसीजर ऑफ क्राइम आर इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम लाइक व्हाइट मनी, और पूरा एक साइकिल क्रिएट हो जाता है। इसे हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी कैसे हुआ? अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, किसी की किडनैपिंग हुई, मान लो उसको किडनैपिंग में 5 करोड़ रुपीज लिए, तो ऐसे हुआ अपना फर्स्ट स्टेप कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी। अब इसको क्या करेंगे? किसी बैंक में प्लेस करेंगे, बहुत सारे स्मॉल, मान लो 5 करोड़ रुपीज लिए थे, 500 अकाउंट बनाए, सब में 100-500 रुपए ऐसे डिफरेंट स्मॉल स्मॉल अमाउंट बनाया, जिसको कैच करना मुश्किल है। इन सारे अकाउंट से पैसे चले गए कंपनी एक्स। कंपनी एक्स ने क्या किया? उसको वायर के थ्रू ट्रांसफर कर दिया कोई ऑफशोर बैंक में या कोई स्विस बैंक अकाउंट में। उसने लोन दिया कंपनी वाई को, और ऐसे ही हमारे सिस्टम में इंटीग्रेट हो गया। ये जो सिस्टम था ना कि कंपनी एक्स को दिया, फिर ऑफशोर बैंक को दिया, कंपनी वाई को दिया, इसके थ्रू इन्होंने क्या किया? लेयरिंग करी उस ब्लैक मनी की इनटू द सिस्टम, ताकि उसका सोर्स ऑब्लिटरेट हो जाए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रेशन। अब ये जो मनी हमारे सिस्टम में आ चुका है, इससे आप असेट्स खरीदते हो, प्रॉपर्टीज खरीदते हो, ताकि इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम एंड वाइट इट बिकम्स वाइट मनी। So these are the basic 3 steps involved in money laundering act. First is placement. Placement पे हम जो भी ब्लैक मनी या जो भी इलीगल मनी अर्न हुआ, उसको हम टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में। फिर वो मनी को हम बैंक में या किसी किसी बाहर भेजते, आउट ऑफ कंट्री भेज देते, या फिर बैंक अकाउंट में जमा करा, वहां से बाहर भेजा। जब वो बाहर चला गया, वापस बाहर से अलग अलग शेल कंपनीज बना के उस पैसे को हमने यहाँ पे रोटेट करा। दैट इज कॉल्ड लेयरिंग। जहाँ पे उसका लेयरिंग के अंदर में दैट मनी जहाँ पे वो एक्ट हुआ है उससे दूर चला जाए, जिससे उसकी आइडेंटिटी पहचानना मुश्किल हो। एंड देन द फाइनल इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में उन शेल मनीज के थ्रू, उन शेल कंपनीज के थ्रू दैट मनी will be rotated to our country again in the form of loan or in form of donations, or there is a very big dealing with NGOs। NGOs के पास में जो फंडिंग आती है वो बहुत सारे उसके अंदर में कनेक्शन है, इसीलिए गवर्नमेंट NGOs को लेके इतना स्ट्रिक्ट भी हो गई। वो वहां पे वो ब्लैक मनी रूट होता था, और उसके थ्रू देन फिर दे गिव दैट मनी इन आवर सिस्टम। कोई भी असेट्स परचेज हो रहा है, किसी दूसरी ट्रस्ट को अपने डोनेशन दे दिया, वो डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहा है लीगल, कोई भी कोई जो ये जो होते हैं संघ वगैरह, इनको अलग अलग बॉडीज को दे दिया वो पैसा। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जब वो वहाँ पे वापस हमारे रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर में वो पैसा आ गया। एंड वेरी बिग, दिस इज अ काइंड ऑफ अ पैरेलल इकोनॉमी जो अपने आप में चलती है, और इट डेंजर्स टू आवर इकोनॉमिक सिस्टम एज वेल एज आवर सोशल सिस्टम। सब जगह इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर पड़ता है। दैट्स व्हाई all the countries of the world are very much
they are very sensitive to this prevention of money laundering. And because one of the major area is terrorist financing also. जब इन सोसाइटी जब इन ये जो ट्रस्ट या एनजीओ डिफरेंट होते हैं वो फिर फर्दर उसको टेररिस्ट फाइनेंसिंग के काम में भी इस मनी को यूज करते हैं, इसीलिए सारी गवर्नमेंट्स और सब लोग ये वियना कन्वेंशन हुआ और दूसरे कन्वेंशन हुए उसको लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है कि हर कंट्रीज को अपने लेवल पे इस तरह के लॉज बनाने हैं जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकें, बिकॉज इट्स एट टाइम डेंजर टू द पॉलिटिकल सिस्टम ऑल्सो। इस लेवल तक का पैसा खर्च होता है कि पॉलिटिकल ओपिनियन भी लोगों की चेंज करी जाए, वहां पे वो अपने हिसाब से लोगों को बैठा सके। तो दैट्स व्हाई दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एक्ट कि इससे इतनी सारी चीजों को प्रिवेंट करने का गवर्नमेंट को एक ये टूल है। तो कुल मिला के मतलब अगर अपन बात करें, आपको क्या लगता है मनी लॉन्ड्रिंग इंडिया का प्रॉब्लम है? इट्स ए वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। आप किसी भी कंट्री के अंदर चले जाओ, मनी लॉन्ड्रिंग इज ए बिग प्रॉब्लम फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री, है ना। तो अब सबसे पहले तो इन्होंने जैसे प्लेसमेंट की बात की कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग होता है तो वो कहीं ना कोई इलीगल एक्टिविटीज के कारण होता है। तो कई बार ये होता है ना कि साहब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो पैसा आया और उसके ऊपर टैक्स दे दिया, तो कई लोग ये समझते हैं कि साहब मैंने तो टैक्स दे दिया, अब तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, भले ही वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है। तो किसी पर्टिकुलर पैसे को कमाना और उसके ऊपर टैक्स ले लेना इज नॉट ए सॉल्यूशन। जो टैक्स लिया वो बिकॉज ऑफ द रेस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉज है। कई बार इस तरीके की, आई थिंक आई एम श्योर वरुण ने भी इन चीजों को डील विद किया होगा कि कई बार इस तरीके का एक सोच डेवलप हो जाता है कि साहब क्या हो गया, पैसा कमाया, ड्रग से पैसा कमाया, लेकिन उन्होंने टैक्स तो दे ही दिया ना, सो नाउ व्हाट एल्स इज लेफ्ट। सो ये सोच गलत है। एंड जैसा अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग का प्रॉब्लम जो है वर्ल्ड वाइड है, और किस तरीके से, जैसा वियना कन्वेंशन की अपन बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब एवरी कंट्री इज नाउ फॉर इयर्स हैव बीन थिंकिंग ऑफ कि इस मनी लॉन्ड्रिंग की प्रैक्टिस को कैसे कर्ब करें, और ये बहुत जरूरी भी है। क्योंकि जैसे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, सपोज ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, तो आज अपने अगर अपन बात करें इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं, कौन से स्टेट्स हैं जो ड्रग की वजह से पीड़ित है? हरियाणा है, हरियाणा है, पंजाब इज द मोस्ट इफेक्टेड कंट्री बिकॉज ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। अब पंजाब के साथ में और क्या प्रॉब्लम है? पंजाब का कनाडा कनेक्शन हम सबको पता है, तो प्रॉब्लम है या नहीं है ना। तो वो जो एक बात चल रही है कि साहब खालिस्तान होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना, और अलग अलग तरीके की हर चुनाव में और इनमें सब जगह न्यूज वगैरह आती रहती है विद रेफरेंस टू दिस एस्पेक्ट। तो होता क्या है कि ये सब चीजें जो है ना कनेक्टेड है। ड्रग इज नॉट दी ओनली इश्यू कि यहाँ पे ड्रग है तो वो एक इश्यू है, उसके साथ साथ में कंट्री की व्यवस्थाओं खोखला करना ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है कि हाँ यार, इस कंट्री के अंदर किस तरीके से अनस्टेबिलिटी लेकर के आए। तो वैसे ही जैसे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे इजराइल और गाजा पट्टी की, फलस्तीन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी इस तरीके की चीजें होती है ना। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी आपस में कितना टकराव चल रहा है। तो ये इन सब चीजों को स्पॉन्सर करने के लिए भी इस तरीके से इलीगल जो पैसा जनरेट होता है इकोनॉमी में, दैट मनी इज ऑल्सो यूज फॉर सपोर्टिंग these type of activities which are illegal in the respective countries also। और हम कहते हैं कि साहब हमें इस पे बात ही नहीं करनी है। हमारा तो अभी रवैया यही है ना कि we don't want to talk about anything which is out of the course।
है मनी लॉन्ड्रिंग आपके कोर्स में? है? है? नहीं, अब नहीं है, पहले था। अब नहीं है ना, तो इन लोगों को लगा कि now it is part of. अब है या नहीं? बस नहीं. अभी हटा दिया है। हटा दिया. लेकिन हमें देखिए, हमें एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या हमें केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट, केवल क्लर्क बन के रहना है? जब तो आप जो आपका कोर्स है ना उतना करो, अकाउंटिंग में कैसे डेबिट होती है, कैसे क्रेडिट होती है, एंड वी आर वेरी गुड एट एक्चुअली मेकिंग ए गुड ट्रायल बैलेंस, मेकिंग ए गुड बैलेंस शीट, और उसमें से प्रॉफिट कितना अपन कैसे निकालते हैं, बैलेंस शीट में कौन से आइटम को कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ डालते हैं, बहुत बढ़िया हो आप, शानदार एकदम। लेकिन वो काफी नहीं है इफ यू वांट टू एक्सेल। वो आपको ओवरऑल, अगर इन्होंने तो हटा दिया इस लॉ को, इन्होंने क्या हटा के, पता है क्या चल रहा है? इन्होंने ये सोचा है, जो भी कोर्स के अंदर इस बार चेंजेस हुए हैं, व्हाट दे हैव थॉट, उन्होंने ये सोचा कि फाइनल के अंदर कंपनीज एक्ट हटा दिया, ऐसा मैंने सुना है ना? क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट सीए का काम थोड़ी है, कंपनीज एक्ट कंपनी सेक्रेटरी का काम है। तो ये आपको लग रहा है कि बर्डन कम हो गया हमारा, कंपनीज एक्ट हट गया, तो बर्डन कम नहीं हुआ है, आपकी वैल्यू कम हुई है इफ यू आर नॉट रीडिंग कंपनीज एक्ट इन योर सीए फाइनल, है ना? आपको लग रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नहीं था, हटा दिया, बर्डन कम हो गया, अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, वी विल बी ए सीए इवन दो वी विल नॉट रीड मनी लॉन्ड्रिंग, लेकिन उसके साथ साथ में वो आपकी वैल्यू भी कम कर रहा है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसका मतलब ये थोड़ी कि ऑडिट के अंदर आपको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आने की जरूरत नहीं है। सपोज वहां पे उन्होंने इस एक्ट को हटा दिया, वहां पे कंपनीज एक्ट को हटा दिया, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि फॉर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टडी दीज सब्जेक्ट्स। कंपनीज एक्ट के पढ़ने की क्या जरूरत है? तो कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ोगे तो कंपनी ऑडिट कैसे करोगे? मनी लॉन्ड्रिंग अगर नहीं पढ़ा आपने एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट द मनी लॉन्ड्रिंग, तो आपकी ऑडिट के अंदर कल को कोई ऐसा इश्यू आ गया, आपको क्या देखना है? हम जब रेवेन्यू ऑडिट करेंगे तो क्या देखेंगे? इलीगल सोर्स। नहीं, हम तो ये देखेंगे ना कि बैंक से पैसा आया या नहीं आया। तो बैंक में पैसा आ गया, रेवेन्यू सर्टिफाइड, दैट्स ऑल। लेकिन अगर इसका मतलब क्या हो गया कि ऑडिट करते हुए अगर कोई इलीगल तरीके से भी पैसा आ गया, तो अभी जो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री देने वाले हैं ना, वो केवल इस एक्सटेंट तक देने वाले हैं कि यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट कि ये पैसा इलीगल है या नहीं है, उतना ही कोर्स रखा है इन्होंने। जबकि जब सर्टिफिकेशन करोगे तो आपका कोर्स जो है वो दैट इज वाइड एनफ। सर्टिफिकेशन के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमारे तो कोर्स के अंदर ही, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि साहब बच्चों के कोर्स में कंपनीज एक्ट है ही नहीं, तो हमारी टीम कैसे कंपनीज एक्ट का ऑडिट करेगी? वी कैन नॉट डू दिस। बच्चों के कोर्स में तो मनी लॉन्ड्रिंग ही नहीं है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि साहब वो मनी लॉन्ड्रिंग की कंप्लायंस को कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे देखें? सो ऑल टुगेदर डिफरेंट वे पे कोर्स गया है और डिफरेंट वे पे प्रैक्टिकल चीज। तो हमें इसको, अच्छा अब ये अल्टीमेटली घूम फिर करके क्या हो रहा है? इंजेक्टेड सिस्टम। ये कुछ ऐसा दिखता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है इलीगल, अनटेंटेड मनी। तो आपको ये जो पैसा जब कहीं पे भी, अच्छा इट इज नॉट अबाउट ओनली द ऑडिट्स, आप कल को किसी दूसरी जगह भी हो एज ए फाइनेंस कंट्रोलर या एज ए, तब भी आपको इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपन सब जगह ऐसी जगह चले जाएं कि सब कुछ ठीक ही ठीक है। कितने भी लॉज लेके आ जाओ, जिसका इंटेंशन खराब है वो इस तरीके का कोई ना कोई घपलेबाजी करके और अपनी बुक्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, और एट द एंड वो यहाँ लेकर के जाएगा इसको। सो एज ए रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर, और कल को आप खुद नहीं फंसो किसी चीज में, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि नहीं नहीं यार, ये अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है ये। क्योंकि अगर अपन इसमें इफेक्ट देखेंगे तो फिर वो, जहां तक मैंने इसको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है,
लेकिन वो फिर अल्टीमेटली चेन एस्टेब्लिश करेंगे कि यार पैसा अल्टीमेटली व्हाट इज द सोर्स ऑफ सोर्स, ओरिजिन पैसा कहाँ है, ये इनको देखना पड़ेगा. One important thing which I want to add to was this lecture. यहाँ पे burden of proof जो है वो जिस पर्सन के ऊपर एलिगेशन लगा है दैट पर्सन हैज टू प्रूव कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी नहीं करी है. तो जो ऑफिसर्स हैं दे नीड टू ओनली सरफेस दैट कि ये ब्लैक मनी है, ये इलीगल मनी है. दे हैव टू ओनली क्लेम दिस कि भाई ये इलीगल मनी है. डिफरेंट टू सीआरपीसी एंड अदर लॉज, इंडियन पिनल कोड, वहां पे प्रोसिक्यूशन को ये प्रूफ करना पड़ता है कि ये इन्होंने कुछ गलत करा है. बट यहाँ पे जो अक्यूज्ड है उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी नहीं करी. तो दैट्स व्हाई अगेन द स्कोप ऑफ दिस एक्ट इज वेरी वेरी बिग. And one another thing which Bhupendra Bhaiya was saying कि इनकम टैक्स से रिलेशन इसका नहीं है. लाइक जो बेसिक कंसेप्ट जहां से मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड उठा, जो यूएस के अंदर में लोग ड्रग माफियाज जो कर रहे थे उन्होंने लॉन्ड्रिंग की मशीन्स लगाई. वो लॉन्ड्रिंग की मशीन जो ड्रग्स से इनकम हुई उस इनकम को उन्होंने लॉन्ड्रिंग इनकम बताया और लॉन्ड्रिंग इनकम पे टैक्स भी दिया. बट अगेन वो मनी जो था उसको उस पर टैक्स दे दिया. इससे ये मतलब नहीं है कि वो मनी वाइट मनी हो गया. वो मनी तो इलीगल, वो illicit एक्टिविटीज से अर्न करा हुआ मनी है एंड दैट इज फॉलिंग अंडर दिस. वाइस वर्सा, अगर किसी पर्सन ने कोई इनकम छुपाई अपनी, उस इनकम पे टैक्स नहीं दिया, बिजनेस अर्न कर रहे थे, बिजनेस में 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उसको शो करा 50 लाख, तो 50 लाख जो उसका बचा दैट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. अगर वो लेजिटिमेट एक्टिविटीज से उसने इलीगल मनी मतलब उसने ब्लैक मनी अर्न करा है. तो ब्लैक मनी से इसको कंफ्यूज नहीं करना है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लैक मनी. इट इज समथिंग व्हिच हैज रिलेशन टू क्राइम एंड क्राइम्स भी वही क्राइम्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द सेक्ट. As Bhupendra sir pointed, I want to add one more thing कि money laundering एक continuous process है. It's not a one time thing. Once the system establishes, वो continuously ऐसा होता रहता है और continuously black money या dirty money हमारे system में integrate होता रहता है. And also we should never confuse black money with the money laundering money. black money में हम ऐसा होता है कि हमने किसी income पे tax नहीं दिया, लेकिन जब मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो आपका जो पैसा है वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से आया है, भले से आप उस पर टैक्स भी दे दो तब भी वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कवर होगा. और ब्लैक मनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज बिटवीन. नाउ अब आपने इतना सब कुछ कर लिया है, मनी आपने इलिसिट सोर्सेस से कमा के इंटीग्रेशन कर दिया है, तो पनिशमेंट तो मिलेगी. तो अगर कोई भी व्यक्ति जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गिल्टी फाउंड आउट होता है, he will be punished for a rigorous imprisonment of 3 to 7 years and a fine, and we should focus here, and fine जो up to 5 लाख रुपीस होगा. और कोई ने अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है एज पार्ट ए ऑफ द नार्कोटिक शेड्यूल ऑफेंस, जिसमें है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, तो उसकी इम्प्रिजनमेंट बढ़ जाएगी 3 to 10 years इंस्टेड ऑफ 3 to 7 years, एंड फाइन विल बी अप टू 5 लाख रुपीस. Also, the tainted property included in the money laundering will be dealt by PMLA Act only and will be confiscated by the central government. Now, over to you, Abhishek. Just one thing, one should not confuse with this fine amount. This fine amount of rupees 5 lakh, it is in addition to the confiscation of that property. So whatever money the person who is doing this illicit activities, he has earned, or whatever property he has made, that property will be subject to confiscation, plus he has to serve with imprisonment of 3 to 7 years, or in case of drug trafficking up to 10 years, along with fine of rupees 5 lakh or sometimes more also. Thank you, Archie, for such a beautiful presentation. So moving on to the next topic, that is attachment of property involved in money laundering.
So we have already discussed what property is, what crimes are, and what is the illegal money. So basically वो सबको मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा प्रॉपर्टी के साथ कैसे डील करती है अथॉरिटीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अथॉरिटीज के लिए उस प्रॉपर्टी के साथ डील करना, उस प्रॉपर्टी के साथ किस तरह से उस प्रॉपर्टी को मैनेज करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी जो है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से है। सो होता क्या है उसमें प्रॉपर्टीज को डील करने के लिए लॉ की लैंग्वेज में हम बात करें तो वेयर द डायरेक्टर्स और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर has a reason to believe on the basis of material in his possession that any person in his possession of proceeds of crime or and such proceeds of crime are likely to be या तो conceal हुए हैं, transfer हुए हैं, dealt हुए हैं any manner में, जो कि frustrate करता है उन proceedings of crimes को, तो अथॉरिटीज के पास ये राइट है कि वो 180 डेज तक के लिए उस जो प्रॉपर्टी है जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से बिलोंग करती है, जिसको प्रोकर किया गया है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से, उस प्रॉपर्टी को वो अटैच कर सकते हैं प्रोविजनली। उसके बाद ऑल्सो जो अथॉरिटीज है यानी कि डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स जो भी प्रिस्क्राइब्ड हैं उनको इमीडिएटली फॉरवर्ड करनी पड़ेगी कॉपी, अटैचमेंट ऑफ द कॉपी, जिसमें वो बताएंगे कि डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी जो कि उन्होंने सीज की है या जो कि उन्होंने कॉन्फिस्केट अटैच की है, सो उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एक वो कॉपी पास करेंगे। ऑल्सो जो ऑर्डर रहेगा अटैचमेंट का shall cease have effect on the expiry of the specified period on the date of the order, यानी कि वो जो 180 डेज की लिमिट है वो उसके ऊपर ही खत्म हो जाएगा उसका अटैचमेंट। सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, साथ में एक क्वेश्चन भी मैं बोलूंगा उसके लिए। तो एग्जांपल बेसिकली ये एक पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर मुन्ना भाई। तो मुन्ना भाई जो है वो ऑलरेडी अभी फिलहाल नए नहीं अपने ड्रग डीलर बने। इतना सारा पैसा देख के उनको बहुत रहा नहीं गया और उन्होंने जूल ऑफ इंडिया में 3 फ्लैट्स खरीदे। तो उसके बाद क्या लिए एक फ्लैट अपने बेटे को गिफ्ट कर दिया उन्होंने। बेटे को भी बहुत एक्साइटमेंट आया, बेटे ने सोचा आज इस फ्लैट पे पार्टी करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कॉल कर लिया, अपने फ्रेंड्स को बुला लिया एंड सब सेट हो गया था। थोड़े टाइम बाद में पता चला कि वो जो प्रॉपर्टीज हैं अथॉरिटीज को पता चल गया, क्योंकि 3 प्रॉपर्टी एक साथ जूल ऑफ इंडिया में खरीदने के बाद अथॉरिटीज को पता चल गया कि ये जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई थी ये कहीं ना कहीं क्राइम से रिलेटेड थी, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से प्रोकर की गई थी। तो उसी के लिए उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया। तो मेरा क्वेश्चनिंग आप लोगों से ये है, क्या वो प्रॉपर्टी अब पार्टी करने के लिए यूज में आ सकती है बेटे के लिए? अटैचमेंट के बाद हाँ, अटैचमेंट के बाद वो चीज होगी ना, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हो प्रॉपर्टी। नहीं, एग्जैक्टली लॉ का लैंग्वेज यही कहता है कि दिस सेक्शन, आप थर्ड पॉइंट पढ़िए, दिस सेक्शन शेल नॉट प्रिवेंट द पर्सन इंटरेस्टेड इन द एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच फ्रॉम सच एंजॉयमेंट। यानी कि वो पर्सन एंजॉय कर सकता है उस प्लेस पे, उस पार्टी कर सकता है और आराम से उस प्लेस पे अपना कर सकता है, भले ही वो प्रॉपर्टी अटैच हो गई है लेकिन उस प्रॉपर्टी को वो एंजॉयमेंट के पर्पस के लिए कर सकता है। तो जो हमारे पास मिस्टर मुन्ना भाई जूनियर थे, ही कैन पार्टी ऑल नाइट। तो मतलब अटैचमेंट के साथ राइट्स ट्रांसफर नहीं होता। राइट। नहीं, इसमें there is a catch in it. It is not like that. It is only a provisional attachment. So when the ED people, they search and they found that yes, there is something fishy in this transaction, this property, these 3 flats, they have apprehension that these 3 flats of Jewel of India may be purchased out of some drug trafficking money. But who will decide that this money is earned out of this drug trafficking activity? This will decide only by the special courts which are being constituted under this act. So meanwhile, government the lawmakers has apprehended that in between the proceedings of court they take to come to their finalization, it will take time, maybe 1 year, 2 years, 3 years, 6 years. So meantime, they have given this power to ED that they can provisionally attach their property, but this provisional attachment cannot be curtail the right of enjoyment. Okay, so that the person may not
get this property. He may not sell this property. He may not mortgage this property with some banks or some, so that the right of the government will get vanishes out of it. So this is the purpose of this provisional attachment. This can be made the maximum up to 180 days, and sometimes it can be extended further depending upon the conditions. So in 180 days, the court has to decide about this provisional attachment thing. We can use the property for living purposes per se, but we cannot use it for monetary purposes. Like Exactly. If you have, if suppose the person was having only the cash, he hasn't purchased that properties. In that case, it is not the thing. He may use that cash for his for purchasing anything. So that cash needs to be confiscated. He cannot use that. So enjoyment का मतलब ये हो गया कि they can use it, but they cannot give it on. They cannot And transfer it. They cannot transfer it Liquidate, convert. This thing cannot be done. because attachment refers to that. Keep it as it is, accept your own use. So son can actually use the property. So basically, just after attaching, as soon as possible, director or any other officer who provisionally attaches any property shall within 30 days from such attachment file a complaint stating the facts of such attachment before the adjudicating authority. So basically इस authorities के बारे में हमने बात की कि authority क्या क्या है. तो एक hierarchy यहाँ पे आपके सामने है authorities के बारे में. four authorities है इस purpose of the act के लिए, PMLA के लिए. तो हम बात करते हैं. सबसे पहले डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर आते हैं. सेकंड पे हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर रहते हैं. थर्ड वी हैव असिस्टेंट डायरेक्टर, एंड फोर्थ वी हैव सच अदर क्लासेस ऑफ ऑफिसर्स एज मे बी अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, जिनको हम सेक्शन ऑफिसर्स भी कह सकते हैं. सो बेसिकली ये पूरी हायरार्की रहती है जिसके अंडर पूरा का पूरा PMLA एक्ट जो कि है इन पे गवर्न रहता है और ये लोग एक्शंस लेते हैं इनके रिगार्डिंग. तुम अभी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी कुछ क्लैरिफिकेशंस और वो आए हैं PMLA, तो वो उसको भी कवर किया है. तो आधी अधूरी पढ़ाई करके अभी इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन भी आई है कुछ स्कोर Guideline तो है, that will cover. Moving on to the next topic, adjudication. So basically it is a procedural step. So I'll be reading it out. On receipt of complaint under section 55 or applications made under section 17(4) or under section 18(10), if the adjudicating authority has the reason to believe that any person has committed an offense, it may serve a notice of not less than 30 days on such person, calling him upon to indicate the sources of income, earning of the assets out of which means or by means which he has acquired the property attached under section 5(1) or seized or frozen, the evidence on which he relies on other relevant information and particulars, and to show cause why all or any of such property should not be declared be the properties involved in money laundering and confiscated by the central government. तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जो अथॉरिटीज है वो उनसे रिप्लाई मांगेगी कि आप हमें बताएं कि ऐसा शो कॉज नोटिस मांगे कि आप हमें बताएं कि ऐसा क्यों हम ना करें, कि आपकी प्रॉपर्टी को अटैच क्यों ना करें, हम ऐसा क्यों माने कि वो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो इन्वॉल्व नहीं है विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में, या वो ब्रोकर नहीं की गई है कोई क्रिमिनल एक्टिविटी से. Second point, where a notice specifies that any property as being held by a person on behalf of other person, a copy of such notice shall also be served upon such other person. यानी कि अगर वो जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन से भी रिलेट करती है, तो वो जो नोटिस है वो उस दूसरे पर्सन को भी जाएगा. इन द सेम केस जॉइंट, जब प्रॉपर्टी जॉइंटली हेल्ड है तो वो जो नोटिस है जो कि अपनी अथॉरिटी सर्व कर रही है फॉर द adjudication पर्पस, तो वो सेम टाइम पे दोनों पार्टीज के पास जाएगा जो भी जॉइंटली उसको होल्ड करती है प्रॉपर्टी को. The adjudicating authority shall, after considering the reply of such notice issued, hearing the aggrieved person and the director or any other officer authorized by him in this behalf, and
taking into account all the relevant material placed on record before him, by any order, record a finding where all or any of the properties which are referred in the notice are involved in money laundering. If a property is claimed by a person other than a person to whom the notice has been issued, then the property opportunity of being heard shall also be given to such person also to prove that property is not involved in money laundering. यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि क्लेम करता है उस प्रॉपर्टी को कि वो प्रॉपर्टी उसकी है, जो भी अथॉरिटीज ने जिसकी प्रॉपर्टी कह के वो सीज की है, उसके अलावा अगर कोई दूसरा पर्सन जो है वो अगर कहता है कि प्रॉपर्टी उसकी है, तो उसको भी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, ये कहने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि वो प्रॉपर्टी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग में. If an adjudicating authority decides that any property is involved in money laundering, then he shall by an order in writing confirm the attachment of the property or retention of the property or record seized or frozen and record a finding of that effect. Such attachment or record shall A. Continue during the pendency of the proceeding relating to the offense under this act. Second, become final after an order of confiscation is passed by the special court. So basically पूरा प्रोसीजरल पार्ट था कि कैसे adjudication इसका फ्लो करता है. Where the provisional order of attachment has been confirmed by the director or any other officer authorized by him in this behalf shall forthwith take with the possession of property attached or frozen. If special courts find that offense of money laundering has been committed, it shall order such property involved in money laundering or the property which has been used for the commission of the offense of money laundering shall stand confiscated to central government. अभी जैसे कि वरुण सर ने बताया था कि जो स्पेशल कोर्ट होता है बेसिकली डिसीजन मेकिंग उनके पास में होती है कि क्या वो प्रॉपर्टी को परमानेंटली कॉन्फिस्केट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, क्योंकि एक बार को सिर्फ वो प्रोविजनली अटैच हुई थी प्रॉपर्टी, उसके बाद जो पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है वो स्पेशल कोर्ट के पास रहेगा. If a special court finds the offense of money laundering has not been committed or the property is not involved in money laundering, it shall order release of such property to the person entitled to receive it. Also, special court के पास ये पावर रहेगी कि अगर वो जो प्रॉपर्टी है अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग में कमिटेड नहीं है, तो इन्वॉल्व नहीं है, तो वो ऑर्डर दे सकता है उस प्रॉपर्टी के रिलीज के लिए ऑफ सच प्रॉपर्टी एंटाइटल्ड, जिसको भी वो मिलनी चाहिए प्रॉपर्टी या जिसने भी अगर क्लेम करी है और वो प्रूफ करने में सक्सेसफुल हुआ है. These special courts जो यहाँ पे स्पेशल कोर्ट है ये सच नॉर्मल कोर्ट ही है. नॉर्मल जो सेशन कोर्ट्स होते हैं उन्हीं को ये पावर दी जाती है कि वो स्पेशली केसेस पीएमएलए वाले केसेस को अलग से उसकी हियरिंग करें या उसके लिए अलग से कुछ डेप्यूट कर दें कि ये 2 आवर्स में पीएमएलए रिलेटेड हियरिंग होगी. तो दैट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद कि कोई different courts होंगे या कोई different special courts होंगे. Only the courts were vested with the power of these special courts. So moving on to the next topic is vesting of property in central government. So for the purpose of this act, जो भी प्रॉपर्टी किसी की भी नहीं है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज रहेंगी या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कोई भी रहेगा तो उस पर डायरेक्ट हक सेंट्रल गवर्नमेंट का आ जाएगा. अब वो कैसे रहता है, एक बार हम लॉ की लैंग्वेज पढ़ते हैं. Where any order of confiscation has been made in respect of any property of a person, all the rights and title of such property shall vest absolutely in central government free from all the encumbrance. अब ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं हमारे लिए, क्योंकि ये पॉइंट सीधा हमें ये कहता है कि कोई भी ऑर्डर अगर कॉन्फिस्केशन का पास होता है किसी भी प्रॉपर्टी के लिए जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेट करती है, तो उस प्रॉपर्टी पे सीधा का सीधा राइट्स एंड टाइटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर हो जाएंगे. अब फ्री फ्रॉम ऑल द एनकम्बरेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? सो बेसिकली अगर इसको हम एग्जांपल की तरह लें तो अगर कोई प्रॉपर्टी थी जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में पाई गई, जो भी प्रोसीड्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से हमने एक्वायर किया है उस प्रॉपर्टी को, तो अगर वो प्रॉपर्टी पे बाय चांस हमने कोई लोन लिया है, कोई भी एक पर्सन ने लोन ले रखा है एंड देन वो डिक्लेयर हो जाती है कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से इन्वॉल्व है, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी लोन यानी कि वो एज अ मॉर्गेज लगी गई थी वो प्रॉपर्टी, तो वो सारा का सारा क्लियर आउट हो जाएगा. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो जो प्रॉपर्टी है वो पूरी की पूरी एज इट इज जाएगी, उस पर और किसी का राइट नहीं हो सकता, वो और कोई क्लेम नहीं कर सकता.
अच्छा, दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद कि जो भी पर्सन है उसकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर से किसी और का राइट हट जाएगा, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट रह जाएगा आफ्टर द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन। बट द पर्सन हु वाज लाइबल टू पे द लोन फॉर विच दैट प्रॉपर्टी वाज मॉर्गेज, उसको वो एज इट इज उसकी लाइबिलिटी स्टैंड आउट करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर बैंक ने पैसा दे रखा है किसी असेट के ऊपर, किसी भी कंपनी को या किसी भी इंडिविजुअल फर्म, एंड इफ दैट asset on which has mortgage to the bank, on which loan given by respective borrower, suppose that asset is out of the money laundering income, है ना, out of such type of illegal income, तो क्या होगा? बैंक के लिए उस एसेट का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो एसेट तो अब अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाए। तो इसका मतलब जब बैंक भी अपने पैसे दे रहा है किसी बोरोवर को, आप लोगों को हो सकता है कल को कोई बैंक का ऑडिट करना पड़ जाए, या कहीं कल को आप कोई बैंक में काम कर रहे हो, तो मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने पैसा एज ए ऑफिसर किसी को लैंड किया है और आपने बिल्कुल भी अपना आईक्यू नहीं लगाया कि यार ये पैसा कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई इंटर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो वहीं पे ही मनी लॉन्ड्रिंग है। विद इन इंडिया ऑल्सो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के अंदर भी मनी लॉन्ड्रिंग का इनकम हो सकता है और उससे कोई एसेट क्रिएट हो सकती है। तो इसका मतलब जब एज ए बैंकर आप किसी को पैसा दे रहे हो और किसी एसेट के अगेंस्ट में दे रहे हो, तो आप ये भी असर्टेन करो कि यार ये एसेट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग खरीदी कैसे है, उसका सोर्स क्या है। केवल उसके नाम में वो एसेट है, इट डजंट मीन दैट दैट एसेट इज नॉट आउट ऑफ द इलीगल इनकम्स। और हमने ये नहीं देखा, चलो आप ऑडिट तो नहीं करोगे, लेकिन आप में से कुछ लोग तो बैंक में तो क्रेडिट में नौकरी करेंगे ना, और आपने ये नहीं देखा, तो क्या हो गया, है ना। आपने थोड़ा भी प्रोफेशनल स्केप्टिज्म यूज नहीं किया, मैं ये केवल इतना ही कह रहा हूँ। आपने सिंपल बैंक का एक प्रोसेस है कि हाँ यार ये होना चाहिए, बाकी चीजों में आपने क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग है हर बार टिक 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 करना है, इस बार भी कर दिया। ऐसी एक चेकलिस्ट बनती होगी हर जगह, एंड वी हैव नॉट यूटिलाइज्ड आवर स्किल सेट टू फाइंड आउट द एक्चुअल ट्रुथ। तो जहां कहीं पे भी आपको थोड़ी सी भी स्मेल आने लगे कि नहीं यार ये कुछ तो प्रॉब्लम है, इस पर्सन का एक्चुअल सोर्स में तो इतना कुछ है ही नहीं, है ना, उसकी जितनी एसेट है उतना उसका सोर्स ही नहीं है। इसका मतलब उसका सोर्स कुछ ना कुछ कोई इलीगल तरीके से हो सकता है, ये हमें इतना तो स्मेल करना पड़ेगा। तो ये जो बात कही है ना, ये यहाँ से ऐसे दिखने में प्रोविजंस ठीक रहे, सिंपल लग रहे हैं, बट these provisions can be useful for us wherever we work। कहीं पे भी हम काम कर रहे हो, चाहे एज ए बैंकर कर रहे हो, चाहे एज एन ऑडिटर कर रहे हो, या खुद ही हम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ये भी पॉसिबल है कि आपको तो जो कंपनी के ओनर्स हैं वो कह रहे हैं और आप उस चीज को बस मान ही रहे हो, अपना दिमाग नहीं लगा रहे, एंड देयर ऑल्सो यू आर साइनिंग कि साहब हमारे पास में ये प्रॉपर्टी, तो यू कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द विक्टिम, नॉट विक्टिम, पार्ट ऑफ दैट क्राइम। ये पॉसिबल है क्योंकि आप नोइंगली और अननोइंगली जो असेट क्रिएटेड है आउट ऑफ दीज प्रोसीड्स, उसको आप मॉर्गेज कर रहे हो, उसके साथ आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो नोइंगली और अननोइंगली यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस एंटायर, वो जो इन्होंने बताया था ना, प्लेसमेंट और इंटीग्रेशन, यस, उस पूरे साइकिल में आप भी उसका नोइंगली और अननोइंगली पार्ट बन सकते हो। सो क्या हमें ये सब चीजें देखने की जरूरत नहीं है? डू वी नॉट रिक्वायर टू थिंक ऑन दीज एस्पेक्ट्स? हमारा सोचने का जो
दायरा है वो थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम क्या है सबसे ज्यादा, कि हम हमारे सोचने के दायरे को बिल्कुल छोटा सा रख लेते हैं, बिल्कुल स्मॉल, कि नहीं यार इसके बियॉन्ड तो कुछ भी नहीं है। तो देन प्लीज गो इनटू द लाइन ऑफ क्लर्क्स। क्लर्क बनना है आप बिल्कुल, जहाँ पे करोड़ों लोग हैं उस लाइन में एक आप भी लग जाओ, कुछ पता नहीं। और अगर आप अपना सोचने का और वो कैसे ठीक होगा, वो बार बार किसी चीज को डिस्कस करेंगे, सोचेंगे, उस पर कुछ मनन करेंगे, कुछ अपनी भी कोई चीज लगाएंगे, है ना, कुछ क्वेरीज करेंगे। किसी ने एक भी जना क्वेरी नहीं करता। अगर आप क्वेरी भी नहीं करोगे तो शायद यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेल। बार बार मैं आपको बोलता हूँ, इतना ये टॉपिक, ये तो इन्होंने तो यहाँ पे जो बांस दिया वो बांस दिया, जो पढ़ना वो पढ़ लिया, लेकिन क्या इनके बोलने की वजह से आपके मन में सवाल आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अगर नहीं आ रहे हैं मतलब आपका माइंड का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, आपने ब्लॉक किया हुआ अपने आप। और आ रहे हैं और आप पूछ नहीं रहे हो, मतलब आप अभी भी हेजिटेट कर रहे हो, और आप पूछ रहे हो, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं एक प्रॉपर इंटरेक्शन है विच विल अल्टीमेटली हेल्प। कंटिन्यू। हाँ, So if someone should be abandoned, are they also booked or are they also क्या कहता भी लोग बताओ। is the burden someone basically you are charged as guilty and you have to prove your innocence, even in case of abandonment. Yeah. हाँ, अभी जो सर ने बैंक वाली बात बोली ना उससे ऐड कर दूंगी कि इस बैंक गवर्नमेंट ने बैंक को ऑलरेडी रिपोर्टिंग एंटिटी बता रखा है कि अगर बैंक में कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो जिससे थोड़ा सा भी हिंट होता हो कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, देन बैंक हैज टू रिपोर्ट, और उस ट्रांजैक्शन को होने से पहले उन्हें रोकना भी पड़ेगा। दे शुड नॉट लेट दैट ट्रांजैक्शन हैपन अंटिल इट्स दे आर सैटिस्फाइड कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व नहीं है, और उन्हें रिकॉर्ड भी मेंटेन करने पड़ेंगे, जिसके लिए अभी आगे है स्लाइड। वो आरबीआई की पूरी पूरी एक चेकलिस्ट होगी उसका। So section 2(1) essay is there where the government has mentioned that certain persons are to be treated as reporting entities. They have to report for certain transactions which government has notified time to time. So they have to catch those information with them, and they have to report also to the this ED Enforcement Directorate. So banks are there, other financial institutions are there. These companies which are using this games and all online games and something, they are also there. And ये जो in- ऑनलाइन गेम्स है ना, क्रिप्टो करेंसीज है, cryptocurrency has recently bought into this ambit, and CAs, CS, and CWAs are also bought into this ambit of reporting entities. But they will be treated as part of this only when they will be doing certain type of transactions which the recent notification has mentioned, like dealing with the client's money, purchasing immovable property on their behalf, etc. तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट एज ए स्टेचुरी ऑडिटर, बट सपोज यू आर डूइंग सर्टेन ट्रांजैक्शंस ऑन देयर बिहाफ, कि उसका पैसा कुछ उसने कमा रखा है और उसकी उस एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो, या तो उस पैसे से आप कोई एसेट परचेज कराने में उसको मदद कर रहे हो, और एनीथिंग, एनी अदर एंसिलरी एक्टिविटीज। सो बेसिकली मैं भी स्ट्रांगली अग्री करता हूँ भूपेंद्र सर की बातों को कि एज अ बडिंग सीए हमें क्या देखने की जरूरत है। थैंक यू भाई, एग्री हो। ऐड भी करना चाहता हूँ कुछ ना कुछ पॉइंट्स, तो क्योंकि फाइनेंशियल जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है सीएस पे कि वो कैसा अपने क्लाइंट्स को क्या गाइडेंस देते हैं, क्या कंसल्टेंसी देते हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो ऐसी चीजें ध्यान में रखना जो कि इलीगल है, जो कि हमारे पूरी कंट्री के लिए बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। तो बहुत हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है कहीं ना कहीं। सो बैक टू द टॉपिक, हम पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं।
So second point पे थे हम कि the special court or the adjudicating authority shall attach or seize the property only after giving an opportunity of being heard to the person interested in the property attached or seized or frozen. Third, if any encumbrance on the property or leasehold interest has been created with a view to defeat the provision of Chapter 5, then it may, by order, declare such encumbrance or leasehold interest to be void, and thereupon aforesaid property shall vest in central government free from all such encumbrance or leasehold interest. इसके लिए हम एग्जाम्पल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सेम पॉइंट के लिए. Proviso given under this section says that any liability in the respect of such encumbrance which may be enforced against any property shall not be discharged from such person. ये भी मैं आपको पॉइंट्स पहले ही बता चुका हूँ कि अगर किसी भी पर्सन ने लोन लिया था उस प्रॉपर्टी के ऊपर तो उसके ऊपर से कोई लाइबिलिटी नहीं जाएगी, उसको एज इट इज वो लाइबल रहेगा वो अमाउंट पे करने के लिए. Now coming on to the next topic, which is management of properties confiscated. अब इतनी सारी मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट कर ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन करेगी क्या वो उसका? नहीं तो यहाँ पे भी हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और उसको ले जाए प्रॉपर्टी को. तो उसका मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है प्रॉपर्टी का, कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो कैसे मैनेज करती है. तो बेसिकली लॉ के लैंग्वेज में हम बात करें तो द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट एज मेनी ऑफ इट्स ऑफिसर as it thinks fit to perform the function of administrator. Basically जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो अपने ऑफिसर्स में से एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉपर्टीज के लिए अपॉइंट कर देता है ताकि वो मैनेज कर सके उन प्रॉपर्टीज को, उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उन पे मैनेज कर सके, उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सके उस प्रॉपर्टी का पूरा, एंड उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितना भी मैनेजमेंट का काम है वो पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है. The administrator appointed shall receive and manage the property in relation to which an order has been made in such manner and subject to such conditions as may be prescribed. अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर का एक बहुत बड़ा काम होता है उस प्रॉपर्टी को एज इट इज मेंटेन करना जब तक उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक उसके ऊपर जितने भी कॉन्फिस्केशन के जो भी लाइबिलिटीज उस प्रॉपर्टी से हैं पूरी, वो जब तक पूरी नहीं हो जाती तो उसको पूरा एज इट इज उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि वो प्रॉपर्टी जो है वो कहीं ना कहीं खराब ना हो जाए. in the sense the administrator shall also take such measures as the central government may direct to dispose of the property which is vested in the central government. अच्छा, अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से जब प्रॉपर्टी का पूरा आ चुका है, उसका डिक्लेरेशन आ चुका है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले लिया है कि क्या करना है उस प्रॉपर्टी का, बाय चांस उसको अगर डिस्पोज करना है प्रॉपर्टी से, उससे रिलेटेड जो भी प्रोसीड्स है वो वापस लेने हैं या उसका कोई भी तरह से उसको डिस्पोज करना है प्रॉपर्टी को, तो वो काम भी यहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेटर के पास रहता है. सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम डेलीगेट कर देती है उनके एडमिनिस्ट्रेटर को ताकि वो पूरा का पूरा उनके बिहाफ पे उस प्रोसीडिंग को कंप्लीट कर सके. ये जो कस्टम वगैरह पे ये कई बार ये जो स्मगलिंग के थ्रू पकड़े जाते हैं ना आईफोन और अलग अलग, ये आपको अगर सस्ते में खरीदने हैं तो यू गो टू देयर ऑक्शन वेबसाइट, तो वो आपको क्योंकि वो कौन उसको वो सीज कर लेते हैं कॉन्फिस्केट हो जाता है ना. और उसके बाद में देन ऐसा तो है नहीं कि वो उनकी ड्यूटी है टू डिस्पोज इट ऑफ प्रॉपरली, तो इसलिए फिर वो उसको ऑक्शन में डालते हैं. कोई रिकवरी का. हाँ, तो आप वो ये जो गैजेट गुरु आते हैं ना ये बताते रहते हैं आप यहाँ से ले लो है क्या, बाहर से कुछ लेके आना है हाँ. तो यहाँ पे लेके आओगे डायरेक्टली, अगर लीगल तरीके तो उस पर ड्यूटी लगती है बहुत सारी. हाँ. अगर आपको ड्यूटी नहीं देंगे तो आप क्या करो, कोर्ट पे ही छोड़ दो, हाँ. माल उठाओ मत, गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट करके सस्ते में बेची खरीद लो. अच्छा, आप खुद ही खरीद सामान भी सस्ता. एक्चुअली इसमें होता ऐसा था कि शूज के एक पेयर को एक पोर्ट में मंगवाते थे, दूसरे पेयर को दूसरे पोर्ट में मंगवाते थे. अच्छा, तो अब एक पेयर वाला तो शू कोई खरीदेगा नहीं, तो उनको उससे सस्ते में मिल जाता था एंड दे यूज्ड टू डू द प्रोसेस. कितना बढ़िया एग्जांपल दिया ऐसे कर मत लेना बदमाश है. रास्ते से खाना. तो ये लोग कितना है कि मतलब लोगों के दिमाग बहुत चलते हैं. मैं तो कह रहा हूँ कि जो कम पढ़ा लिखा है ना या जो जिसका बिजनेस माइंड चलता है
उसने कोई एमबीए का डिग्री किया नहीं किया, सीए किया नहीं किया, वो यही चीजों में मतलब वो कैसे लॉ को कॉन्ट्रावेन करे, ज्यादातर जो है मतलब उनको कुछ लगता ही नहीं है। उनको लगता है कि यार ये तो पॉसिबल है ना यार, कैसे नहीं हो सकता। तो वो कोई ना कोई नए नए तरीके की इजाद करते रहते हैं कि यार ये कैसे हम, और आपके पास भी आते हैं कि साहब ये हो सकता है नहीं हो सकता। अच्छा आप मनो कर दो कि बोलो इनको कुछ पता ही नहीं है, ये तो होता ही है। Moving on to the next topic is a power regarding summons, production of documents and evidence. Section 11 state करता है कुछ powers regarding summons, production of documents and evidences. तो adjudicating authority shall, for the purpose of this act, have same powers as are vested with the civil courts while trying a suit in respect of following matters, namely: first, discovery and inspection; second, enforcing the attendance of any person, including any officer of a banking company or financial institution or company. क्या हुआ तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा? पता नहीं कहाँ देख, समझ नहीं है, या तो इधर देख या उसकी तरफ देख। हैं? And examining him on the oath. So basically ये point क्या कह रहा है कि authorities के पास, adjudicating authority के पास power होती है कि क्या वो टिफिन में ध्यान रखो, खाना खा के आए ना पूरा। चलो ठीक। उसकी भी मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। So basically second point ये कहता है कि enforce, adjudicating authority के पास ये power रहती है, जो कि बेसिक सिविल कोर्ट के पास जो पावर होती है, सेम पावर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास रहती है कि वो समन कर सकता है किसी भी पर्सन को आने के लिए, किसी भी ऑफिसर, बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के किसी भी ऑफिसर को, और एग्जामिन कर सकता है उन्हें ओथ पे, जो भी उन्हें क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड अगर उनके कोई क्वेश्चन है तो। थर्ड पॉइंट है कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, कोई रिकॉर्ड्स है तो वो बुलवा सकता, receiving the evidence on affidavits. Fourth, issuing commissions for examination of witness and documents. Fifth, any other matters which may be prescribed. So next topic we are moving on to is reporting entity to maintain records. अभी रिपोर्टिंग एंटिटीज के बारे में हमने बात भी करी थी यहाँ पे बीच में, थोड़ी सी एक ग्लिम्स लिया था। तो रिपोर्टिंग एंटिटीज क्या रहती हैं? तो बेसिकली रिपोर्टिंग एंटिटीज जो रहती है मोस्टली बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो फाइनेंशियल फ्लो रहता है ट्रांजैक्शंस का, वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही रहता है। इसमें रिपोर्टिंग एंटिटी डिफाइंड है नहीं? आपने लिखी है क्या कौन होती है रिपोर्टिंग एंटिटी? नहीं एग्जैक्टली। ऑब्लिगेशंस किस किस के ऊपर है? कल को ये कोई ऑडिट कर रहे हो उसकी, तो वो रिपोर्टिंग एंटिटी भी है कि नहीं है पता चला ना। आज हमारे पास जैसे एक आध कोई एनबीएफसी का ऑडिट है सो सारी बैंकिंग कौन सी वाली एनबीएफसी एयू में ना अलग से डिपार्टमेंट है मनी लॉन्ड्रिंग का, वहाँ पे शायद ये देखो। एयू तो होगी वो, ये तो बैंक है, तो बैंक है तो रिपोर्टिंग एंटिटी मींस सेक्शन 2 WA के अंदर में डिफाइंड है। Reporting entity means a banking company, financial institution, intermediary, or a person carrying on designated business or profession. Out there, person carrying on designated business or profession वो defined है to 1SA के अंदर में। वहाँ पे इन्होंने financial institutions और real estate entities। अच्छा रियल एस्टेट एंटिटीज भी रिपोर्टिंग एंटिटीज आती है? हाँ, बिटकॉइन ये जो तो कोई स्पेसिफिक crypto के अंदर क्राइटेरिया में deal फुलफिल करते हैं। करते हैं तब आती है या सारी आ जाती है? 10 लाख का टर्नओवर तो यार कैसे ही होता है? ट्रांजैक्शन। अच्छा Person carrying on designated profession or business or profession means person carrying on activities for playing games of chance for cash of kind and includes such activity associated with casino. Inspector General of Registration appointed under Section 3 of Registration Act, जहाँ पे भी प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्टर ये जेडी और ये जेडी सब। वगैरह ये सब होगा। जेडीए में तो रजिस्ट्री तो उधर होती है। हाँ, जेडीए में जेडी में भी हो जाता है। रियल एस्टेट एजेंट as may be notified by the central government. तो Agent? हाँ, रियल एस्टेट एजेंट as may be notified by the central government. तो उसमें उन्होंने लिमिट प्रिस्क्राइब करी हुई
dealers in precious metal, precious stone, and other high value goods, as may be notified by the central government. Person engaged in safekeeping and administration of cash and liquid securities on behalf of other person, as may be notified by the central government. Person carrying अभी on पता नहीं, हो सकता है इनमें अपना कोई इक्का दुक्का क्लाइंट ऐसा ये जो हो। लॉकर्स वगैरह रखते हैं प्राइवेट, वो भी हो गए। अभी प्राइवेट लोकर वालों की भी तो सर्च हम्म। काफी हुई थी ना, वो इसी के चक्कर में थी, ईडी की बेसिकली गणपति प्लाजा में। Person कैश का बहुत ज्यादा loan carrying होता है। on such other activities as central government by notification so designated from time to time। तो इसके अंदर में अभी तक इन्होंने ये जो लिस्ट है 5, 6 या 10 तक हो गई। क्रिप्टो जो पर्सन क्रिप्टो के अंदर में डील कराते हैं वो हो गए। फिर CA, CS, CWA ये हो गया, तो टोटल 10 नहीं, CACWSP एज ए रिपोर्टिंग एंटिटी हो गएगा। पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन इसके अंदर में हो गए। बट वो फिर उस साथ में कंडीशंस है कि जैसे वो रिमूवल प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट्स में डील कर रहे हैं या फिर क्लाइंट के मनी को मैनेज कर रहे हैं उन केसेस। तो इसका मतलब ये काफी वाइड है। Wide इसमें भी definition लिस्ट में कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक्चुअल में दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग, बट अपन या वो कुछ कर नहीं रहे। Exhaustive list नहीं। तो आपका कौन सा स्टैंडर्ड ऑडिटिंग कवर हो जाएगा इसमें? ऐसे 250 कंसीडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। तो मान लीजिए कोई उसके अंदर एज ए कंप्लायंस रिपोर्टिंग एंटिटी है और वो नहीं कर रहा है, हाँ तो वो अपने को बताना पड़ेगा। तो वो एज एन ऑडिटर आपको इफेक्ट कर रहा है ना। तो अब अगली बार जब भी ऑडिट पे जाओ तो पहले ये वाली लिस्ट भी पढ़ के जाओ। Reporting entities। इसकी एक लिस्ट बना लेना कौन कौन से रिपोर्ट Sure. Reporting entities to maintain records. So coming on to the law language, maintain a record of all the transactions, including information relating to the transactions covered under clause B in such manner as to enable to reconstruct the individual transaction। अच्छा, अब ये पॉइंट कहता क्या है? ये पॉइंट कहता है कि जितनी भी रिपोर्टिंग एंटिटीज है उनको ट्रांजैक्शंस जो है वो रिपोर्ट करने पड़ेंगे अथॉरिटीज को इस वे में कि वो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को वापस रिकंस्ट्रक्ट कर पाए, यानी कि उस पूरे ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर पाए कि वो कैसे कैसे वो ट्रांजैक्शन हुआ है। इस तरह से उनको इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी पड़ेगी रिपोर्टिंग एंटिटीज को, अथॉरिटीज को। अच्छा, सेकंड पॉइंट कहता है कि फर्निश टू डायरेक्टर्स विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सच ट्रांजैक्शंस वेदर अटेम्प्टेड और एग्जीक्यूटेड द नेचर एंड द वैल्यू ऑफ विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ पे ये पॉइंट कहता है कि जितनी भी रिपोर्टिंग एंटिटीज है उनको डायरेक्टर, यानी कि डायरेक्टर जो हमने अथॉरिटीज पढ़ी उनके अंदर विद इन सच टाइम, एक टाइम प्रिस्क्राइब के अंदर उनको जो रिलेटेड अपने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो शेयर करने पड़ेंगे। कौन से ट्रांजैक्शन से रिलेटेड? या तो जो हो चुके हैं, एग्जीक्यूट हो चुके हैं, या अटेम्प्ट हुए हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। दोनों ट्रांजैक्शंस जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं या अटेम्प्ट भी किए गए हैं, कंप्लीट नहीं हुए लेकिन अटेम्प्ट किए गए हैं ट्रांजैक्शंस, ऐसे ट्रांजैक्शंस भी और किस एक नेचर ऑफ वैल्यू में आपको यहाँ पे रिपोर्ट करने पड़ेंगे, ऐसा रिपोर्टिंग एंटिटीज को कहा गया है। मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट and beneficial owners as well as account applies and business corresponding relating to its clients। अच्छा, क्लाइंट्स की आइडेंटिटी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी क्लाइंट्स से हमने आइडेंटिटी के लिए डॉक्यूमेंटेशन रखवाया गया है, वो भी एज इट इज उसको प्रेजेंट करना पड़ता है रिपोर्टिंग एंटिटीज को, अथॉरिटीज को। तो यहाँ पे एक नीचे एक फ्लो बनाया गया है जिसमें दिखा रहा है कि ट्रांजैक्शंस जो है, मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था। फिर फर्निश करना है डायरेक्टर को इन्फॉर्मेशन। सेकंड, क्लाइंट से रिलेटेड पॉइंट में हमने पढ़ा था कि वेरीफाई करना आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट और आइडेंटिफाई द बेनिफिशियल ओनर कौन है। अच्छा, क्लाइंट्स वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट्स प्लस बेनिफिशियल ओनर आल्सो, कि कौन बेनिफिशियली कौन बेनिफिट ले रहा है उसका एग्जैक्टली में। थर्ड बोलता है कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग आइडेंटिटी ऑफ इट्स क्लाइंट एंड बेनिफिशियल ओनर। तो ये पूरा एक फ्लो है, आप देख सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की। एवरी इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड, फर्निश्ड और वेरीफाइड सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल केप्ट कॉन्फिडेंशियल। अच्छा, ये जितना भी डेटा है ये सिर्फ पूरा का पूरा रिकॉर्ड जितने भी है अपने बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से डील किए जाएंगे
इनको बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से मेंटेन करना होगा और वैसे ही प्रोवाइड करना होगा. Maintenance of records by reporting entity of all such transactions whether attempted or executed, the nature and value of which may be prescribed. The records referred to in clause A of subsection 1 shall be maintained for a period of 5 years from the date of transaction between a client and reporting entity. अच्छा, यहाँ पे एक टाइम लिमिट आ जाती है कि 5 साल तक वहां पे आपको जो क्लाइंट जब भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसके 5 साल तक आपको वो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डिटेल्स और क्लाइंट से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे रिपोर्टिंग एंटिटी को मेंटेन करनी पड़ेगी. थर्ड पॉइंट आता है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स. द रिकॉर्ड्स referred to in clause E of the subsection 1 of documents evidencing the identity of the clients and beneficial owner as well as the account files and business correspondence relating to its client shall be maintained for a period of 5 years after the business relationship between the client and the reporting entity has ended और अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड. अब यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ द क्लाइंट से जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे वो आपको 5 साल तक मेंटेन कर रहे हैं. कब से? जब आपसे उसका रिलेशन यानी कि क्लाइंट से जो आपका रिलेशन था, बिजनेस रिलेशन जब खत्म हो चुका है उसके 5 साल तक आपको वो मेंटेन करने हैं एज इट इज, या उसने अपना अकाउंट क्लोज करवाना है उससे 5 साल तक आपको वो मेंटेन करने हैं रिकॉर्ड्स. Exemption by central government. The central government may by notification exempt any reporting entity or class of reporting entities from any obligation under this chapter. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये रिपोर्टिंग एंटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, इसके लिए नेसेसरी नहीं है हमको रिपोर्ट करना, तो वो एग्जेम्प्ट कर सकता है किसी भी क्लास ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी कि हमने बात की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और हमने और भी रिपोर्टिंग एंटिटीज की बात की, तो किसी भी क्लास ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो एग्जेम्प्ट कर सकता है फॉर सच रिक्वायरमेंट्स. Then we come to maintenance of the records of transaction. तो ये कुछ transactions हैं जहां पर reporting entity को इन transactions के बारे में report करना पड़ेगा authorities को. So हम बात करते हैं. सबसे पहले है cash transaction of value of more than 10 lakh in foreign currency. अगर कोई भी cash transaction होता है किसी भी account में more than 10 lakh foreign currency में, तो वहां पे वो चीज reportable हो जाएगी. सेकेंड पॉइंट कहता है कि सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस, कैश ट्रांजैक्शंस, इफ टोटल इन अ मंथ एक्सीड 10 लाख इन अ फॉरेन करेंसी. अगर 10 लाख से ज्यादा का फॉरेन करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन इन अ मंथ, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो उसके लिए भी वो चीज रिपोर्टेबल हो जाएगी. तो ऑडिट करते वक्त भी हमें ये ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं अगर इन चीजों से रिलेटेड भी कोई पॉइंट्स आ रहे हैं, हालांकि ये रिपोर्टिंग एंटिटीज के पॉइंट्स है, लेकिन बेसिकली एक अवेयरनेस पर्पस के लिए भी हम भी ध्यान रख सकते हैं. कैश ट्रांजैक्शंस where forged or counterfeit currency or bank notes have been used as genuine, or where any forgery of a valuable security or a document has taken place facilitating the transactions. अच्छा, यहाँ पे कोई भी forged या counterfeit currency का अगर use किया गया है, bank notes का अगर use किया गया है, तो ऐसे transactions भी reportable हो जाएंगे जहाँ पे भी ऐसी currency का use किया गया है. All suspicious transactions whether or not made in cash by deposit, withdrawal, transfer, checks, credit or debit in a non-monetary account like DMAT, security account हो गया, monetary transfers, loans and advances, collection services of currency. ये ऐसी कोई भी एक्टिविटीज में रिलेटेड अगर कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस भी होते हैं तो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग एंटिटी को यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा. नाउ फाइनल पॉइंट, all the transactions involve receipt by non-profit organization of value. सर ने शुरुआत में भी कहा था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू काफी ज्यादा यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है. तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सेपरेट पॉइंट देना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बहुत ही इजीली मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी. तो कहीं ना कहीं मोर देन 10 लाख अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन करेंसी से ट्रांजैक्शन रहता है तो वहां पे भी ये चीज रिपोर्टेबल हो जाएगी. Now I would like to call Arastu for the presentation. Thank you, Abhishek. So now let's dive into the judicial system present under the PMLA Act. So firstly, let's look at the hierarchy. You can see there's a pyramid here. We have already talked about the adjudicating authority. So we will take up each of these appellate tribunals, special court and high court in this order. So let's start with the appeals to be made to the appellate tribunal.
if any person is aggrieved by the order passed by the adjudicating authority, then he may appeal to the appellate tribunal, or any reporting entity who is aggrieved by the order of the director, he may also appeal to the appellate tribunal. The time for appeal is 45 days from the date of the order, although the म्यूट कर लें. कर दिया सर. I was asking. So as I was saying, the order will be passed by the appellate tribunal, either confirming the order passed by the adjudicating authority, confirming, modifying, or setting aside the order. And a copy of the same shall be sent to the parties of the appeal, the concerned adjudicating authority, and the director as the case may be. The time frame for the same will be 6 months from the date of filing of the appeal. The procedure and the powers of the appellate tribunal are same as we have discussed about the adjudicating authority, and these are the same power as are vested in the civil court. We have already talked about it. I will just quickly summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath, requiring the discovery and production of document, receiving evidence on affidavit, subject to the provisions of Section 123 and 124 of Indian Evidence Act 1872, requisiting any public record or document a copy of such record or document from any office, issuing commission for examination of witnesses, reviewing its decisions, dismissing a representation for default, setting aside any order of dismissal of any representation for default, any other matter as may be prescribed by the central government. And as for the decision to be made by the any question? क्या हुआ? मन नहीं लग रहा? थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बताओ. ऐसे Sir, पढ़ता ये रहेगा तो- तो सब सो जाएंगे. Court के procedure है. So the decision that is to be made by the appellate tribunal. So basically इसमें 2 member होते हैं और इनके बेंच में, और अगर somehow ऐसा होता है कि दोनों member के अलग-अलग decisions हैं, तो फिर वो एक चेयरपर्सन होता है जिसको ये भेज सकते हैं कि मतलब उसका कोई डिसीजन हो. चेयरपर्सन चाहे तो आगे किसी थर्ड मेंबर को भी रेफर कर सकते हैं, और जो भी इनकी मेजोरिटी कहेगी उसके बेसिस पे इनका डिसीजन लिया जाएगा. तो ये फर्स्ट वाले पॉइंट में सेक्शन 38 में सेम चीज ही कही गई है. एंड नाउ सेक्शन 41 सेज कि मतलब इसमें सिविल कोर्ट की पावर वेस्टेड होती है appellate ट्रिब्यूनल में, एंड सेम कोई भी सिविल कोर्ट इसमें कोई भी सूट नहीं कर सकता. Proceeding in respect of any matter which director and adjudicating authority or the appellate tribunal is empowered by or under this act to determine, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred or under this act. मतलब अगर यहाँ पे कोई भी चल रहा है अपना केस, तो फिर उसमें कोई और सिविल कोर्ट बीच में आके किसी भी तरीके की कोई भी इंटरप्शन नहीं कर सकता, ना कि कोई इंजेक्शन हो सकता. ये तो था अपने appellate ट्रिब्यूनल का. नाउ कमिंग टू हाई कोर्ट. हाई कोर्ट जनरली इन मैटर में जब भी डील करता है जब कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है, और क्वेश्चन ऑफ और बेसिकली हाई कोर्ट की मीनिंग इसमें जब आएगी जब मतलब ये जो जुरिस्डिक्शन में जो भी अपनी एग्रीव पार्टी है उसके जिस जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है, वो रिसाइड करता है, या जो उसका बिजनेस प्रोफेशन चलता है, वो वाला हाई कोर्ट. और where the central government is the aggrieved party, the high court within the jurisdiction of which the respondent, or in case where there are more than one respondent, any of the respondents ordinarily resides or carries on business or personally work for gain. इसकी टाइमलाइन होती है 60 days की फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर. एपेलेट पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अगर कोई ऑर्डर पास करा और आप उससे एग्री हो तो एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे.
लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है या फिर आप उसके ऑर्डर से एग्री हो तो आप 60 डेज में हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। हाई कोर्ट के बाद भी सेम पावर होती है कि वो भी आपका डिले कंडोन कर सकता है 60 डेज के बाद भी, अप टू फर्दर 60 डेज। नाउ कमिंग टू द स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट्स के बारे में अपन ने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी। इनमें वैसे कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं होता, ओनली फैक्ट इज कि ये सेशन कोर्ट्स ही होते हैं, बस इनको डेजिग्नेट करा गया कि ये जो ट्रायल होंगे मनी लॉन्ड्रिंग के उसके लिए यूज करा जाएगा, और इनकी जो पावर्स होती है वो प्रोसीजर्स और सारी चीजें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लेट डाउन है, जो सीआरपीसी है। और किसी को ये समझ में आया कि इनकम ये यहाँ पे ट्रिब्यूनल भी है और स्पेशल कोर्ट्स भी है और हाई कोर्ट भी है, तो कौन से केसेस ट्रिब्यूनल के अंदर में जा रहे हैं और कौन से केसेस स्पेशल कोर्ट के अंदर में जा रहे हैं? So what is the basic distinction? What type of cases are there? So it is very important to understand this कि जो भी prevention of money laundering को decide करना है कि money laundering हुआ है या नहीं हुआ, those all cases will go to the special court. Special court has power. Special court means civil court, session courts जो है, those has only power to decide whether the offense has been taken place or not. तो उसको समझना पड़ेगा, एक प्रोसीडिंग तो वो चल रही है जहाँ पे क्राइम है, मींस अगर किसी ने कोई किडनैप करके कोई मर्डर करा और कुछ पैसे लिए, रैंसम लिया, तो वेदर दिस किडनैपिंग वाला ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ, दैट विल बी गोइंग इन सम अनदर कोर्ट। उसके बाद में वहां पे वो जो मनी आया, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का पैसा है या नहीं है, दैट गोज टू स्पेशल कोर्ट। एंड जो प्रोविजनल अटैचमेंट करा ईडी ने, वहां पे जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास करा दैट फंड हैज टू बी कन्फिस्केटेड और नॉट, उसको उसके ऊपर जो भी डिसीजन हुआ उसके अगेंस्ट ट्रिब्यूनल को पावर है, ट्रिब्यूनल विल डिसाइड वेदर दिस कन्फिस्केशन इज प्रॉपर और नॉट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। जो स्पेशल कोर्ट में केसेस जाएंगे वो ट्रिब्यूनल में नहीं जाएंगे, जो ट्रिब्यूनल के अंदर केसेस जाएंगे वो स्पेशल कोर्ट में नहीं जाएंगे, और देन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम। सो जैसे कि सर ने कहा, मतलब जब शेड्यूल ऑफेंसेस कोई डिसाइड हो चुका है किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग, उसको जो अपना एनफोर्समेंट ऑफिसर होएगा वो स्पेशल कोर्ट के पास एप्लीकेशन देगा, उसके बाद इसको क्लब करा जाएगा और फिर स्पेशल कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा। और इसका प्रोसीजर मैंने जैसे बताया था सीआरपीसी से के अकॉर्डिंग ही गवर्न होगा। अब इसमें जो ऑफेंसेस होंगे वो सेक्शन 45 में डिफाइंड है कि वो कॉग्निजेबल होंगे, नॉन बेलेबल होंगे। किसी को पता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है विदाउट एनी वारंट और विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। मतलब उनको ना कि कोई ऑर्डर चाहिए ना कि वो चाहिए, वो सीधा आके आपको अरेस्ट करके लेके जा सकते हैं। ऑल दो कुछ कंडीशंस होती है, 24 आवर्स में आपको मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है एंड ऑल दैट, बट और फर्दर पॉइंट एक और होता है कि अपने जो कंपनीज एक्ट के सारे जो भी ऑफेंसेस होते हैं एक्सेप्ट फॉर आई गेस 212 सेक्शन, वो सारे नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। उन सब में पुलिस ऑफिसर को कोई ऑर्डर चाहिए होगा या फिर कोई वारंट चाहिए होगा, बट जो भी अपने पीएमएलए एक्ट में ऑफेंसेस है वो सारे कॉग्निजेबल होंगे और इनमें बेल भी नहीं मिल पाएगी और ये नॉन बेलेबल होगी। सो इसमें उसको ही डिफाइन करा गया है, बट ऑन द सेम लाइन अगर किसी को बेल चाहिए तो फिर उसके लिए इन्होंने कंडीशन लेट डाउन कर रखी है। वो कंडीशंस है कि कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू अपोज द एप्लीकेशन फॉर सच रिलीज, एंड where the public prosecutor opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable ground for believing that he is not guilty of such offense and he is not likely to commit any offense while on bail. जितने टाइम भी वो बाहर रहेगा उतने टाइम वो ऑफेंस रिपीट ना करे, और देयर आर समहाउ चांसेस, अभी तक बोला नहीं है वो इनोसेंट है, लेकिन देयर आर चांसेस कि मतलब वो इनोसेंट होगा तो उसको बेल पे बाहर निकाला जा सकता है। So the difference between the normal offense and offense of money laundering is that कि यहाँ वहाँ पे bail proceedings can be heard by the magistrate directly without the appearance of public prosecutor, and he can straight away give the bail. But in the case where there is an offense of money laundering, the court has to hear, the notice has to be served to public prosecutor that he has to argue his case. And apart from this, also
the judge has to believe that he has to satisfy that there are reasonable ground of believing that the person is not guilty of such offense and he will not repeat that offense in future. So the again the powers are very stringent, and it is in the opposition of the concept of fundamental rights of the person. So these provisions have been the constitutional validity of these provisions have been challenged in many cases. And recently in 2022, last year, there was one Supreme Court judgment of Vijay Madan Lal Chaudhary, which has upholded the validity of this law. But they have also referred the certain matters relating to this law before the constitutional bench of the Supreme Court. So there may be a decision on certain aspect of this law. So one of the condition for which the constitutional validity has been challenged was this available provisions also. और ये आयरनी भी है कि जिसने जिसने जो मेन ऑफेंस है लाइक किडनैपिंग का ऑफेंस है वहां पे बेल मिल जाएगी बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर के या बिना किसी और दूसरी कंडीशंस के, बट वहां पे जो इन्वॉल्व मनी है उस वाले केस के अंदर में ये दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी। सो जैसा कि सर ने कहा, हाँ मतलब ये एक तरीके से अपने फंडामेंटल जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनको थोड़ा सा तो वायलेट कर रहे हैं, इसलिए इस एक्ट में कुछ एक्सेप्शन जरूर डाले हैं। वो अगेन जो इसका कारण क्यों ऐसा करा हुआ है, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स है वो मानती है कि पीएमएलए जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज है वो इतनी हार्मफुल है, इतनी रिस्की है कि इनकी वजह से इस तरह के स्ट्रिंजेंट लॉस को लेके आना पड़ा गवर्नमेंट्स को। तो इसके एक्सेप्शंस ये है कि अगर किसी की एज 16 इयर्स या उससे कम है, अगर वो वुमेन है या फिर वो सिक है, इन्फर्म है, या फिर ही इज अक्यूज्ड आइदर ऑन हिज ओन और अलोंग विथ हिज को-अक्यूज्ड is accused of money laundering of a sum less than 1 crore rupees, he may be released on bail if the special court so directs. So basically काफी सारे अपने मनी लॉन्ड्रिंग के केस तो उस वाली कंडीशन में फॉल हो जाते हैं जो 1 करोड़ के नीचे होते हैं, और बाकी अदर देन दैट अगर इसका मतलब ये नहीं कि 1 करोड़ के नीचे वाले काम करते रहो। बेल ही मिलेगी, बस पकड़े तो जाओगे। और ये जो कॉग्निजेंस की बात करी थी, ये अपने जो भी ऑफेंसेस है ये सेक्शन 4 में जो डिफाइंड है, जो पनिशमेंट वाले थे अपने 3 इयर्स 7 इयर्स एंड 10 इयर्स वाले, उनकी ये जब कॉग्निजेंस ली जाएगी व्हेन अ कंप्लेंट इज इन राइटिंग इज मेड बाय द डायरेक्टर any officer of central government, state government authorized in writing by in this behalf by the central government by a general or special order made in this behalf by that government. Now another interesting topic of PMLA is reciprocal arrangement for assistance in certain matters. अब अपन ने वो बातें तो कर ली जो अपने इंडिया में ये जो सारे केसेस होते हैं उनके बारे में, और अपन ने शुरू में डिस्कस करा था ऑफेंसेस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस। सो अगर किसी और कंट्री के साथ अगर अपनी कोई भी ऐसा कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है तो उस कंट्री और अपनी कंट्री को साथ में वर्क करना पड़ेगा ताकि अपन उसका पकड़ सके कि किसने करा है, और जो भी जिस भी कंट्री में मनी है, जिस भी कंट्री में प्रॉपर्टी है, वो जिस जगह होना चाहिए था उसका सोर्स जहाँ पे था वहां तक वो पहुंच सके। तो एनीबडी हैज हर्ड नेम ऑफ FATF? FATF क्या होता है? किसी ने पढ़ा है, किसी ने सुना है इसके बारे में? देयर इज अ बॉडी कॉल्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वर्ल्ड ओवर लेवल के ऊपर में, जिसने अपने रिकमेंडेशंस दिए थे 40 रिकमेंडेशंस। कुछ रिकमेंडेशंस उसके इससे रिलेटेड भी है कि most of the offenses under money laundering is pertaining to different countries. एक पर्सन जिसने ऑफेंस करा वो मनी को दूसरी कंट्री में लेके जाता है, वहां से फिर साइफर करता है, इस तरह से ऑफेंस होते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर इंफॉर्मेशन का आपस के अंदर में लेन देन आपस में जब तक नहीं होगा तब तक उस एक्यूज पर्सन को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट of assistance in certain matters between different government bodies of different countries. So अपन इस चीज को समझने के पहले एक बार 3 कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। वो 3 डेफिनेशन है करस्पॉन्डिंग लॉ,
It means any law of any foreign country corresponding to any of the provisions of this act or dealing with offences in that country corresponding to any of the schedule offences. करस्पॉन्डिंग लॉ वैसे नाम सुन के पता चल रहा है, मतलब जैसे अपने यहाँ का कंपनीज एक्ट है, वैसे अगर अपन यूएस या किसी और कंट्री का देखेंगे तो उनका कोई करस्पॉन्डिंग रेस्पेक्टिव लॉ होता है और उसके अकॉर्डिंग भी कुछ शेड्यूल ऑफेंसेस होते हैं. एंड देन ऑफेंसेस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन, जिसके बारे में शुरू में अपन ने बस थोड़ा सा टच अपॉन करा था, उसकी बेसिक डेफिनेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ये है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. आई विल रीड द फर्स्ट पार्ट फर्स्ट. Any conduct by a person at a place outside India which constitutes an offence at that place and which would have constituted an offence specified in Part A, Part B, or Part C of the schedule, had it been committed in India, and if such person transfers in any manner the proceeds of such conduct or part thereof to India. This is the first part. Then second part is any offence specified in Part A, Part B, or Part C of the schedule which has been committed in India and the proceeds of crime or part thereof has been transferred to a place outside India, or any attempt has been made to transfer the proceeds of crime or part thereof from India to any place outside India. So ये दो पार्ट डेफिनेशन है. इसमें एक चीज बस थोड़ी सी ट्रिकी है, द यूज ऑफ वर्ड एनी अटेम्प्ट हैज बीन मेड इन द सेकंड पार्ट. इसको अपन एक एग्जांपल के साथ अभी लेंगे अगली वाली स्लाइड पे, उससे ये क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट ये कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट देख लेते हैं. इट मीन्स एनी कंट्री और place outside India in respect of which arrangement has been made by a central government with the government of such country through a treaty or otherwise. मतलब जो भी स्टेट के साथ जिसका अपन लॉ देख रहे हैं उनके साथ उसको कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कहेंगे. जैसे अगर यूएस के साथ है तो यूएस अपनी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हो गई. अब ये एग्जांपल है, इसमें मिस्टर रोहित जर्मनी में 3 साल से काम कर रहे हैं और उन्होंने एक ऑफेंस करा है जो जर्मनी के अकॉर्डिंग ऑफेंस है, और अगर वो इंडिया में होता तो फिर वो ये स्केड्यूल ऑफेंसेस में फॉल होता और उससे उनको 60 लाख रुपीस मिले. उसमें से उन्होंने अटेम्प्ट करा कि वो 50 लाख इंडिया में ट्रांसफर कर दे, पर इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं रह पाए. तो अपनी यहाँ की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि मतलब ये ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन है एज पर सेक्शन 2RA ऑफ PMLA एक्ट 2002. अब अपने को बताना है कि कंटेंशंस ऑफ गवर्नमेंट करेक्ट है या नहीं है. कोई नीचे डेफिनेशन वापस लिखी हुई, कोई डेफिनेशन पढ़ के बता सकता है कि गवर्नमेंट के कंटेंशन सही है क्या? आपने दो पार्ट पढ़ाई थी. फर्स्ट वाले में लिखा था अगर घाटे इनकम आती है इंडिया के अंदर तो जो दूसरी चीज जो अपन देखी है क्वेश्चन में बाहर ऑफेंस हुआ है और उसमें इसमें अगर ये ऑफेंस इंडिया में अगर हुआ होता और फिर अगर वो अटेम्प्ट करता बाहर भेजने का तो ये डेफिनेशन में कवर हो जाता, फिर इसमें ऑफेंस में आ जाता और फिर जाके गवर्नमेंट का करेक्ट होता. पर एक्चुअली ऑफेंस तो इसने करा जर्मनी में, फिर इसने अटेम्प्ट करा इंडिया में ये मनी को ट्रांसफर करने का, पर उसमें सक्सेसफुल रह नहीं पाया. तो इसमें अपनी इंडिया की गवर्नमेंट, हो सकता है जर्मन की जो वहाँ के रेस्पेक्टिव एक्ट है उसमें फॉल हो जाए तो उसमें इसको कोई पनिशमेंट मिले, लेकिन अपनी इंडिया की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही नहीं फॉल होता. ये मतलब इंडिया के बाहर अगर किसी ने किया हुआ है कोई ऑफेंस वो इसमें कवर नहीं, अनलेस एंड अनटिल वो मनी यहाँ पे आए. अच्छा यहाँ से बाहर गया तो वो तो हो जाएगा. यहाँ पे वो प्रॉपर्टी या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और वो बाहर भी कुछ करता है जो यहाँ के शेड्यूल के अकॉर्डिंग है, वो भी हो जाएगा. उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे उसके अमाउंट तक की कंफिस्केट हो सकती इसकी करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज है वो मनी लॉन्ड्रिंग से हो गया है उसके अमाउंट की प्रॉपर्टी. बट अगर इससे कुछ भी इसका कोई भी मॉनेटरी अमाउंट आ जाता तो इसमें लिमिट नहीं है, फिर वो फॉल हो जाता है. तो इसका आंसर यही है जो वरण्य ने भी कहा था कि the word attempt to remit is missing in part 1 of the definition, and also where even part of the proceed is remitted, still it would be covered under the above definition. Also, the definition of offense of cross-border implication does not contain any monetary limit. Hence, the contention of government is not correct, since the proceeds were not successfully remitted to India, and only an attempt was made. Hence, the offense will not be considered as an offense of cross-border implications. किसी को इसमें डाउट तो है ना? कुछ दोनों कंट्रीज है. फॉर एग्जांपल यही वैसे इंडिया में आ जाते हैं तो इंडिया में भी क्राइम उनकी डील से जब दोनों कंट्रीज में क्राइम कमिट हो गया तो कंट्रीज की लॉस अकॉर्डिंग टू उधर की कंट्री जहाँ पे प्लेस ऑफ ऑफेंस कमिट या जहाँ पे रेमिट, ये इनके डिपेंड करता है
ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग दोनों कंट्री अपना एक्शन लेंगे, क्या दिक्कत है? इसमें सर इन्होंने इसमें ये थोड़ी है कि कोई ट्रीटी है बीच में कि साहब आप पनिश कर दो या नहीं सर ट्रीटी है ट्रीटी है हाँ? वही बता रहा था। अच्छा ये नई चीज है ना, आई थिंक। देखो मेरे को तो यही लगा प्राइमा फसाई कि दोनों जगह ही हो सकता है, बट इफ देयर इज एनी ट्रीटी तो लेट अस नो। हाँ सर फिर तो 25 ईयर्स से 50 ईयर्स की जेल हो जाएगी। उसका एक पोर्शन काट के एक जेल में रखेंगे, दूसरे तो इसमें डिपेंड करेगा उनके बीच में जैसे ट्रीटी रहती है, जैसे अगर कोई भी, मैंने अभी तो कोई ट्रीटी वैसे पढ़ी नहीं है, लेकिन अगर किसी भी कंट्री के साथ अपनी होती है तो उसमें पूरा एज इट इज डिफाइंड होता है। जनरली इसमें सोर्स कॉन्सेप्ट ही लगता है कि मतलब अगर वाकई कोई मनी था जो उसने यहाँ पे रेमिट करा है, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट जनरली उसको रखती नहीं है, वो फिर वापस वहीं पे जाता है। अब पनिशमेंट भी जनरली वहाँ पे होता है जहाँ पे वो ऑफेंस कमिट हुआ था। बस हाँ चेक ही करा जाता है कि दोनों करस्पॉन्डिंग लॉ में वो कवर होना चाहिए वो ऑफेंस। ये वो हो जाता ना, वो क्या छोटा राजन का प्रत्यारोपण हुआ या ऐसा कि प्रत्यारोपण नहीं, प्रत्यार्पण। प्रत्यारोपण तो ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो वो है ना, वो छोटा शकील और पता नहीं कौन के क्या हमारी न्यूज में विजय माल्या, नीरव मोदी का सबका तो ये वही चीज है। एक्स्ट्राडिशन। सो अब उसी एग्रीमेंट की बात करते हैं जो अपन बात कर रहे थे। ये एग्रीमेंट सेक्शन 56 में है। ये अपन अदर कंट्री के साथ करेंगे। इसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज एनफोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने जो एक्ट है वो इस एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि इस एक्ट के जो प्रोविजन है वो वहां जाके एनफोर्स कर सके अपन। एंड सेकंड इज फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन अपने को चाहिए टू प्रिवेंट एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, to prevent any offense under corresponding law in force in that country, and for investigation of case relating to any offense under this act. अपने यहाँ के एक्ट के अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है तो उसका प्रिवेंट करने के लिए भी अगर कोई अपने को इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि कई बार होता है डायरेक्टर के पास कोई इन्फॉर्मेशन आई और उनको किसी और से कुछ चेक करना है जस्ट फॉर प्रिवेंशन पर्पज, तो वो भी एग्रीमेंट में डिफाइंड होता है। और अगर इन्फॉर्मेशन है तो इन्वेस्टिगेट करना है तो वो भी होता है। एंड सिमिलरली अगर करस्पॉन्डिंग लॉ वाले उनके साथ भी एक्सचेंज चलता रहेगा। और फिर इसके बाद अब ये जो अपन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इसकी बात करी, ये बेसिकली अप्लाई कैसे करेंगे उसके भी दो पार्ट होते हैं। पहले अपन डिस्कस करेंगे कि अगर अपने को किसी और कंट्री की, किसी और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की असिस्टेंस चाहिए, तो देयर्स इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 57 of PMLA Act, letter of request to a contracting state in certain cases. So इसमें अगर अपने को कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई भी भेजना है तो फिर अपन एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे जो विदाउट द परमिशन ऑफ स्पेशल कोर्ट हम नहीं भेज सकते। और ये स्पेशल इसमें अपने को जैसे अगर चाहिए एनी एविडेंस इज रिक्वायर्ड इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस और प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट, एंड ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की बात हो रही है, एंड ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट सच एविडेंस मे बी अवेलेबल इन एनी प्लेस in contracting state, and the special court on being satisfied that such evidence is required in connection with the investigation into an offense or proceeding under this act, तो फिर वो स्पेशल कोर्ट के साथ अप्लाई करेगा। फिर स्पेशल कोर्ट का प्रोसीजर होता है वो आगे बेसिस है, वो अपन आगे वाली स्लाइड में भी कवर करेंगे कि वो कैसे होता है। इसमें अपन रिक्वेस्ट करते हैं टू एग्जामिन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, टू टेक सच स्टेप्स एज द स्पेशल कोर्ट में स्पेसिफाई इन लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, forward all the evidence so taken or collected to the special court issuing such letter of request। मतलब फैक्ट्स और जो भी अपने को एग्जामिन करने वो करे, उसके बाद में अगर अपने को कोई स्टेप्स उनसे लेने हैं तो अपन उनको कह सकते हैं ये स्टेप्स परफॉर्म करो, और फिर जो एविडेंस गैदर हुआ वो अपने को वापस देना भी है। और ये जो एविडेंस होता है इसकी बेसिक डेफिनेशन तो ये है, एवरी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंट और थिंग रिसीव shall be deemed to be the evidence collected during the course of the investigation। ये जैसे बताया कि ऑन एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द स्पेशल कोर्ट ये एविडेंस रिक्वायर्ड होएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन। ये एप्लीकेशन दे सकता है कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एनी ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, and in the opinion of the officer that such evidence may be available with the contracting state।
उसको ऐसा लगना चाहिए कि मतलब ये किसी और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, उसके बाद जाके वो अप्लाई करेगा। और सेटिस्फेक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट इज नेसेसरी, चाहे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास कितने ही प्रूफ या कुछ हो, जब तक स्पेशल कोर्ट अपना सेटिस्फाई नहीं होता कि ऐसा है, जब तक वो इसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। एंड ये लेटर ऐसा भी नहीं है कि अपन बस उस कंट्री में कहीं पे जाके ड्रॉप करके आ सकते हैं, किसी जगह तो अपने को एक स्पेसिफाइड एड्रेस डालना ही पड़ेगा। ये है टू अ कोर्ट और एनी अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कॉम्पिटेंट टू डील विद सच रिक्वेस्ट। और सिमिलरली अपने, ये तो बात हो गई कि जो अपने को असिस्टेंस चाहिए किसी और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की। सिमिलर केस हो जाता है जब अपने को असिस्टेंट देनी होती है किसी और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को, वो कवर्ड है सेक्शन 58 में। वैसे यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? ओके, सो इसमें अगर अपने को असिस्टेंट देनी होती है तो उसमें भी सेम ही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा सिंपलर है कि ये उधर वाला जो भी कोर्ट है या फिर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो उनके प्रोसीजर्स है, वो अपने सीजी के पास अप्लाई करेंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेम लेटर और रिक्वेस्ट भेजेंगे। अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ये सेम लेटर और रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा अपने स्पेशल कोर्ट्स को, और एनी अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट, अगर कोई और भी ऑफेंस कवर होता है तो फिर उनको भी देना होता है। और वो रिक्वेस्ट करेंगे कि ये इन्वेस्टिगेशन किसी भी ऑफेंस और प्रोसीडिंग्स के चालू करे, कोई भी एविडेंस गैदर करे और सेम उनको प्रोवाइड करे, मतलब सेम ये वाइस वर्सा, उसका रेसिप्रोकल है। सर आपको कुछ सो अपन ने स्पेशल कोर्ट के बारे में एक और चीज देखी थी, वो प्रोविजनली अटैच भी कर सकता है प्रॉपर्टी को। ऐसे सिमिलर केस में मतलब अपन ने इधर भी बात करी थी, उधर उस कंट्री में अपनी कंट्री में अगर कोई प्रोविजनली अटैच हुई है प्रॉपर्टी, तो स्पेशल कोर्ट के पास ये राइट होता है कि वो उसको रिलीज करे। ये राइट दिया गया सेक्शन 58A में। where offense of money laundering has not taken place or the property in India is not involved in money laundering, the special court may, on an application moved by the concerned person or the director after notice to the other party, order release of such property to the person entitled to receive it. मतलब जब प्रूफ हो गया जितने भी टाइम बाद जाके हुआ कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं था या वो प्रॉपर्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं थी या वो पर्सन उसमें इन्वॉल्व नहीं था, फिर जाके ये ऑर्डर स्पेशल कोर्ट के बाद ही जाके रिलीज हो सकता है। सो बेसिकली रेसिप्रोकल अरेंजमेंट इतना ही था। और अब लेट्स कंक्लूड, अगर किसी को उसके पहले कोई क्वेरी है। तो आपने 1 करोड़ का लिमिट बताया था, उसको कैसे देखते हैं? मतलब साल में देखते हैं, पर्सनली देखते हैं फिर? बेलमेंट का हाँ? बेलमेंट किया फर्स्ट लाइट ओ एक करोड़ का ऑफेंस वाला कि अपन अपने मनी लॉन्ड्रिंग में तब 1 करोड़ या अबव का नहीं, ऐसी लिमिट नहीं है। हाँ बोलो। आज पार्ट बी पार्ट डी के अंदर में है। पार्ट बी में सिर्फ एक ही ऑफेंस है, वो भी शायद अब उसका कोई मीनिंग नहीं रहा है। वापस में है लगा सकते हो, कैसा दिखता है पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर में सिर्फ सेक्शन 132 और इसका है कस्टम्स है, वेयर फॉल्स डिक्लेरेशन और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग प्रेजेंट, वहां पे 1 करोड़ की लिमिट है। के अलावा कहीं पे भी और कोई वो शेड्यूल ए में का वर्ड है। शेड्यूल ए में अपने टोटल 29 समथिंग करोड़ है, और वो ऊपर से किसी भी ऑफेंस किया तो मालिक अमाउंट ही है। It contains one section of Companies Act also. Companies Act का फ्रॉड वाला जो सेक्शन है वो शेड्यूल के अंदर में कवर होता है, वहां पे भी पीएमएलए एक्ट के प्रोविजंस लग सकते हैं। नहीं, वो 1 करोड़ की लिमिट वाली बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ अगर फ्रॉड है तो वो पीएमएलए के अंदर में
पीएमएलए के अंदर में कवर हो जाए। So, in conclusion, constitutionally sincere citizen in India universally recognize the severity of the money laundering as a threat to national unity and global stability. The Prevention of Money Laundering Act, rooted in the United Nations 1990 political declaration, reflect a shared commitment to the preventing the misuse of financial institutions for illicit activities. This international consensus underscores the importance of concerted effort at both national and global level to combat money laundering effectively. The PMLA as a legislation in response not only aligns with the global standard, but signifies a collective determination to preserve the integrity of nation and contribute to a secure world order. So thank you. Can you start the quiz?